Last 3 days of competition here at the Glasgow 2026 Commonwealth Games, and it is time to kind of look back and see if we've got our predictions right. Did things go to plan for India? Did things not go to plan for India? What really transpired in the last 6 or 7 days? Have our athletes been able to stand up and deliver? If they haven't, who haven't and who have? Who is the surprise package? Who has done really well, exceeding expectations? And which are the athletes that haven't been able to stand up to the pressure of an international competition? That's what this video is about. Let's put it in context. We at Rev Sports had said India will win anywhere between 25 and 28 medals. If we now take stock with 3 days of competition still remaining, I think we are on track. I think we are very much on track. We had said we will win about 5 to 6 medals from para. We will win about 6 or 7 maximum from para. So maybe one exceeding expectation. One. The Sharmila gold was expected. The Shilpa Shaila medal was an unexpected one. Dilip Kavit expected. Suman Rana, Shubham expected. We will have to see whether we get 6 or 7. By the way, you can understand it's a cold, dreary, windy, horrific weather day here in Glasgow. It's been like this the last couple of days. Pretty bad in Scotstoun, in that athletics arena. People have found it very hard. You don't want this kind of weather when Neeraj Chopra throws his javelin. Coming to weightlifting, almost to plan. Last 2 events remaining. We will have to see if Vijay Sharma manages to touch that 8 or 9 figure, which we had predicted in Birmingham at the Wolverhampton University training arena. It was 6 out of 6. Rishikanta Singh, Mirabai Chanu, very, very impressive. Harjinder Kaur doing one better compared to Birmingham. Gyaneshwari Jadhav did really, really well to get that silver. Bindyarani Devi, bronze, not bad after increasing her weight category to 58. Some disappointments with Nirupama Devi Seram and Sanjana not really making it. 1 medal super heavyweight Martina Devi from Manipur. Can that young lady make it? If she does, it'll be India's first super heavyweight medal in weightlifting at the Commonwealth Games. Turning our eyes to boxing. A lot of our athletes have confirmed medals, whether it is a Lavlina, whether it is Ankush, whether it is Sachin, whether it is Narendra, whether it is Jadubani Singh. All of them have confirmed their medals. So this is a really good showing, a strong showing as far as I'm concerned from boxing. India stands to win between 7 or 8 medals. The star of the show so far, obviously Sharmila with the gold, but Mirabai Chanu, brilliant with her gold. 20 kilos difference, of course. But for me, the real star, the real breakout medal has to be Gulveer Singh. If you think of 22, it has to be Avinash Sable's medal. If you think of 26, it has to be Gulveer Singh's 10,000 meter silver when you have a really strong competition. We will have an eye on Neeraj Chopra. It's a stellar field with some best javelin throwers of the world, including Rumesh Pathirage Taranga, who's leading the field this year. You have the Kenyans, you have a Julius Rego, you have a Keshawn Walcott, you have an Anderson Peters, you of course have an Arshad Nadeem. So Neeraj Chopra, we will have a very, very close eye on what happens with Neeraj Chopra. The other medals, like I said, we will have an eye on Suman Rana, we will have an eye on Shubham, and these are the medals that are supposed to come from para. Keep a close eye on boxing as well. And lawn bowls, can they finally finish off with a medal? Ravi Bengani and his team have done everything possible to push the lawn bowl story. So the prediction stays. The prediction very much on track between 25 and 28 is what we are still saying here on Rev Sport. And you know what? We at Rev Sports had also predicted something about Murali Srishankar, one of my favorite athletes. One of our favorite athletes, Rohan's favorite athlete and mine, Rohan on camera. Murali Srishankar is one we have backed right through. By the way, ask him about his knee and he will say this is a biohack. He'll say this is not my original knee, this is a biohack. The man is incredible. The man is incredible. We back such athletes. TJ, heart goes out to TJ. We are backing TJ. That gold, that silver medal of Sarvesh was TJ and Sarvesh plotting together. That's collective sport for you.
These are the kind of medals we are celebrating. We've spoken to every possible athlete. Here's a mash of a lot of them speaking out about their medal. Fingers crossed for India in the last 3 days. He doesn't speak much. गुलवीर ज़्यादा मीडिया से इंटरेक्ट नहीं करते हैं, वही हम लोग बात कर रहे थे. बट ये जो कल का अचीवमेंट है ना, ये इंडियन एथलेटिक्स हिस्ट्री में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट्स है. अगर अविनाश का मेडल इन 22 वो स्टैंड आउट, द मेडल फॉर मी इस कॉमनवेल्थ गेम्स का मेडल फॉर मी इज गुलवीर. Unbelievably good achievement. It was pouring, it was raining, it was bad weather. Gulveer ran an extraordinary race. Now India's best distance runner by a mile. अभी भी एक इवेंट हम लोग सोचेंगे, एशियन गेम्स भी आ रहा है. गुलवीर, पहला बात तो ये कॉन्ग्रेचुलेशंस, वो आउटस्टैंडिंग फील्ड था. इंडियन एथलेटिक्स हिस्ट्री में ये मेडल बहुत ऊपर रहेगा. आप थोड़ा डिस्क्राइब कीजिए. सर पहले सर थैंक यू. जो जितनी हमारी AFI आई टॉप्स द आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट पुणे, ये जितनी संस्थाएं हैं हमारे सपोर्ट कर रही हैं जब ये मेडल आया है, क्योंकि हम कंटिन्यू FI और टॉप्स हमारे लिए बाहर अच्छी वो कंटिन्यू ट्रेनिंग करा रही है, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड कोलोराडो स्प्रिंग में ट्रेनिंग करते हैं, उसकी वजह से सर. और कोलोराडो में जब आप ट्रेनिंग करते हो तब ये कीनियन एथलीट्स भी वहीं पे ट्रेन करते हैं, आदिल मुझे कह रहे थे. थोड़ा उस ट्रेनिंग के बारे में थोड़ा सा बताएंगे. क्योंकि उसमें ओलंपिक मेडलिस्ट भी हैं और ओलंपिक पार्टिसिपेट भी कर रखे हैं, अच्छे खिलाड़ी हैं. उनके साथ जब भी हमारे को इतना बेनिफिट मिला है, इतना कंटिन्यू. जब फर्स्ट ईयर गया था, उनके क्या क्या पीछे थोड़ा इतना हमारी कैपेसिटी नहीं थी. अब जितना धीरे धीरे इम्प्रूव आ रहा. और कल का रेस का स्ट्रैटेजी क्या था? बिकॉज फील्ड तगड़ा था, बहुत रेन हो रहा था, वेदर अच्छा नहीं था. आपका थोड़ा सा आपका स्ट्रैटेजी के बारे में. स्ट्रेटजी में कुछ नहीं था सर, यही था कि हम देश के लिए मेडल लेके आए, और मैंने भी यही था, कोच ने बोला था लास्ट 400 पुश करना, जितना उनके फॉलो पीछे चलना, बस इतना ज़्यादा कुछ स्ट्रेटजी नहीं था. मैंने भी यही था कि मेडल लेना, कैसा ही गोल्ड आया, सिल्वर आया, ब्रॉन्ज आया, ये है कि मैंने भी यही था, मेडल आया. 3 generations of champions, rather 3 champions, and one is a role model. The other, Bindia, I've seen in Birmingham. I remember the day she told me that, her father had to close down the shop and they went and bought a television so that they could watch the final in the afternoon in Birmingham. And Gyaneshwari is our new star. So, Meera, why don't you start? With you, I am seeing a revolution. एक revolution देख रहा हूँ. आज आप ज्ञानेश्वरी को सपोर्ट कर रहे थे, बिंदिया को सपोर्ट कर रहे थे. As the leader of the pack, I mean, 5 में 5 medal, you must be super happy. हाँ, क्यों ना हो मैं हैप्पी, क्योंकि शुरू से ही देखो 2 सिल्वर हुआ लड़के का, दोनों लड़के का, फिर मेरा भी, और आज देखो एक ब्रॉन्ज एक सिल्वर. मतलब बहुत खुशी है कि हम सोच के आया था कि इंडियन वेट लिफ्टिंग हम इस बार हम पूरा 11 के 11 मेडल देने के लिए, तो वो अभी होने वाला है. बाकी देखेंगे, पर अभी तक हमारी मेडल जो है, ये मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि उनको देख के ऐसा लगा कि हाँ, उन्होंने भी मुझे देख के ऐसा लगा होगा, पर मैं उनको देख के और भी ज़्यादा मतलब कॉन्फिडेंस, और मैं इंस्पायर हुई हूँ कि वो लोग देख के ना उनका जो मेहनत है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ उन सबको देख के, उनकी अचीवमेंट को देख के. Gyaneshwari, she's 30 years old. I'm 50. 31. Chalo, and yet she's my hero. And I don't say this. I've done sport 30 years से sports करता हूँ. She is one of my heroes. I mean, सब कुछ अचीव करने के बाद इतना humble हमारे देश में कोई चैंपियन नहीं है. What does मीराबाई चानू mean to you? आपके लिए to see her train, आप लोग एक साथ ट्रेन करते हो, एक साथ इनके साथ, and now you've won a silver yourself. You've become a star. What does she mean to you? And tell me about the medal. मैंने शुरू से यही बोला है कि दीदी को देखते हुए मैंने स्टार्ट किया था 2018 में, जब दीदी ने मेडल लिया था, तो तब से मैं दीदी को देखते हुए स्टार्ट किया था. और फिर फर्स्ट टाइम जब मैं पटियाला गई तब दीदी ने ओलंपिक मेडल लेके आया था, तब मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई थी. तो कंटिन्यू मेडल लेते हुए देखना और उनके साथ में ट्रेनिंग करना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट भी है मेरे लिए, क्योंकि मैंने जो ड्रीम देखा है वो कहीं ना कहीं मैं इंस्पिरेशन जो है मेरी, उनके साथ मैं ट्रेनिंग कर पा रही हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है. और कल जैसे उन्होंने गोल्ड लेके आया तो मन में ये था कि हाँ दीदी ने लेके आया तो हमको भी कुछ करना है, तो लेके आना पड़ेगा मेडल अभी इंडिया के लिए. बाकी आप लोग और करते हो. कल इन्होंने बटरफ्लाई बनाया था, आज आप वहाँ पे मैं देख रहा हूँ इंडिया ट्राई कलर का क्लिप लगा के आए हो. हाँ जी. तो ये भी इनसे ही देखते हो क्या? जी. ये तो सुपर्ब है. बट विद द सेम क्वेश्चन, आप इनके साथ इतना साल से ट्रेनिंग कर रहे हो,
What does she mean to you, to the team? Because हमारे लिए देखिए, एक हमारे देश में चैंपियंस है नहीं. अगर मैं बाकी सब स्पोर्ट देख लूँ, क्रिकेट देख लूँ, ये देख लूँ, वो देख लूँ, चैंपियंस नहीं है. तो इस लिहाज से पूछ रहा हूँ. मीराबाई चानू आप एक साथ ट्रेन करते हो. व्हाट डज शी मीन टू यू? आप इनसे इंस्पिरेशन लेते हो? मुझे दीदी हमेशा ट्रेनिंग में भी कभी भी जाने में बहुत एनर्जेटिक है. अभी दीदी का इतना उम्र है, अभी तक हम हमारी उम्र ज़्यादा नहीं है, ऐसे मत बोलो. फिर भी हमसे थोड़ा तो है ना, फिर भी हमसे कम नहीं है दीदी. एनर्जेटिक ट्रेनिंग की टाइम भी कभी भी, इसके लिए मुझे हमेशा मैं दीदी के साथ ऐसे हम भी कभी भी हम लास्ट इन तक हम ट्रेनिंग करने तो दीदी की तरह हम भी एनर्जेटिक होना है, मतलब ऐसे स्मार्ट होना है ऐसे. एनर्जेटिक और स्मार्ट मैं ज्ञानेश्वरी से पूछूंगा, बट दोनों एक्कोलेट दे दिया आपने. मेरी तरफ से मैं पूरा कोशिश करूंगी, पूरा एफर्ट लगाऊंगी एशियन गेम्स के, और इंडिया के लिए ही ज़्यादा मैं लगाऊंगी. और अगर जीत गए तो क्या खाना चाहोगे? बता दीजिए हमें से. पूरा ये राउंड है ना मेरा इतना मेरा हाइट पिज्जा लेके आना है. देखो ठीक है? मेरा बिल्कुल. इतना मुझे मैं बैठ के खाऊंगी. दुकान में नहीं देगा जापान में. मुझे बोलेगा ये क्रिमिनल है, पिज्जा का कुछ करना चाहता है. बट एनीवे, सो दैट्स अबाउट इट. कुछ भी हो, लेके आना ही है. वो तो आएंगे, तो मैं द बैठ के प्रॉमिस. ही खाऊंगी पूरा दिन. So that's about it. We will get the whole pizza shop, whatever there is in Nagoya. Mirabai Chanu, Bindya Rani Devi and Gyaneshwari Jadhav, superstars. You know, generally, when you talk about people around 30ish, you say, okay, now they will taper off and all of that, especially for track athletes. But look at Sarvesh. Abhi to, in fact, at the peak, not even, it's going up and up and up. Whether it is Diamond League, whether it is National Championship, whether it is the 2.31 Commonwealth Games Silver. आपने तो पूरा जो साइकिल बोलते हैं उसको आपने एकदम चेंज कर दिया, उल्टा कर दिया है. यू आर गोइंग ब्रिलियंटली. सुपर्ब एफर्ट. कल भी 2.25 थोड़ा सा ठंड के लिए या वेदर के लिए हुआ होगा, बट बताइए योर फर्स्ट कॉमनवेल्थ सिल्वर. बिल्कुल सर, मेरा कोई मेजर इवेंट में पहला सिल्वर मेडल है और मैं बहुत खुश हूँ. और आप जो बोले कि साइकिल इस बार बहुत चेंज हो गई, पर मैं इसके लिए 15-16 सालों से मैं तैयारी कर रहा था. तो ये आज जाके कई 31 एज हुई मेरी, तो इसमें अभी चेंज हुआ है. तो काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी सपोर्टिव रहा इस साल मेरे लिए. मतलब जैसे मैं टॉप्स में आ गया और एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने स्पाला में इसी मौसम में थोड़ा सा ट्रेनिंग के लिए बहुत अच्छा फैसला था कि इधर आना और ट्रेनिंग करना. तो मेरे लिए ये काफ़ी पॉजिटिव रहा सारी चीज़. तो मैं थैंक यू कहना चाहूँगा सबको, और मेरा जो सपोर्ट किया मेरे को सभी ने, इसके लिए भी मैं सबको धन्यवाद करना चाहता हूँ. एंड देखिए, ये जो आपने कहा कि 15-16 साल का एफर्ट है, लोग गिव अप कर देते हैं, बट आपके लिए जो अभी लास्ट 2 महीना में 2.31 डायमंड लीग में टॉप पोजीशन हासिल कर लेना, मल्टीपल टाइम्स जो है, दीज आर ग्रेट एफर्ट्स. थोड़ा कंसिस्टेंसी के बारे में भी बात करिए, क्योंकि वो स्टैंड आउट कर रहा है आपके फेवर में. बिल्कुल सर, ये जो जंप है, मैं एक मतलब 2.25, 2.28, 2.31 ये इस साल में 2-4 बार कर दिया. तो मेरे लिए ट्रेनिंग में भी सेशन बहुत अच्छे जा रहे थे. और मैं ऑफ सीज़न बहुत जल्दी, जैसे वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुआ था तो मैं 6th पोजीशन हुआ था. तो वर्ल्ड चैम्पियनशिप के बाद मैं टॉप्स में आ गया. तो मेरे को काफ़ी सपोर्टिव मिल रहा था कि अभी मतलब टॉप्स में आ गया और अभी अच्छा करना है. तो मैंने ऑफ सीज़न जल्दी स्टार्ट कर दिया. सीज़न मेरा थोड़ा ख़राब था स्टार्टिंग में, पर अप्रैल के बाद मैं तो काफ़ी अच्छा कर पाया था. तो अच्छा परफॉर्मेंस लगा. थोड़ा सा आप और टीजे का वो जो डिस्कशन हो रहा था, इतना अच्छा लग रहा था. उनका ठीक नहीं गया, बट वो आपके साथ पूरा समय थे, आप लोग दोनों बातचीत कर रहे थे, वो वीडियो में देख रहा था. थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे? बिल्कुल सर, टीजे भी अच्छा शेप में था, वो भी काफ़ी अच्छा पॉजिटिव बंदा है. मतलब मेरे लिए तो काफ़ी भाई जैसे, एकदम हमारा भाईचारा ही है. अच्छा, तो काफ़ी हेल्प रही उसकी मेरे लिए. और मेरे मतलब रनवे में मेरे काफ़ी सारे मिस्टेक थे, तो डायरेक्ट डिस्कशन कर पा रहे थे हम, तो उसकी काफ़ी सारी हेल्प मिली मेरे को. और हमेशा बात होती है तो रनवे के बारे में पूछता हूँ कि कैसे करना चाहिए क्या, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस भी काफ़ी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है. तो यूएस में ट्रेनिंग करते हैं तो मेरे लिए बहुत फ़ायदा होता है. तो कभी बातचीत होती है तो हम सारी चीज़ में बात करते हैं. तो रनवे पे खासकर मैं पूछ लेता हूँ कि भाई हमें क्या सीखने के लिए मिलेगा उनसे. Hello and welcome. Very special interaction. Gold medalist Sharmila ji, bronze medalist Shilpa ji, of course Satya Narayana, a very close friend of mine, and anyone for Paralympics, if you want to know, he's your man. He's your man for every question Paralympics, and joined also by Ravi Bengani, Deputy Chef de Mission of the Indian contingent here in Glasgow.
आपसे शुरू करते हैं। गोल्ड मेडल हमारे देश में ना आता नहीं है, हम लोग तरसते हैं इसके लिए। कल भी हम लोग सोच रहे थे गोल्ड गोल्ड गोल्ड, और आपका जब आया पूरा 1.4 बिलियन हम लोग एक साथ चिल्लाने लग गए और सेलिब्रेट करने लग गए। आप बताइए, अभी तो 12-14 घंटा हुआ है, आपको लग रहा है आपने क्या अचीव किया है, वो समझ में आ रहा है आपको? ये तो सर 1-2 दिन में समझ में आएगा। बट घर में बात हुआ, क्या हुआ जी, बताइए? घर वाले तो खुशियाँ मना रहे हैं, लेकिन मेरे तो 2-3 दिन में दिमाग में बैठेगी कि मेरा मेडल आ गया। अभी तो सोच रही हूँ, कोई सपना तो नहीं ले रही। जब फाइनली आपको लगा, बिकॉज वो आपका क्षेत्रों के बाद वो नाइजीरियन का क्षेत्र था, हम लोग बार बार वो देख रहे थे, नंबर्स देखने का कोशिश कर रहे थे, जब पता लगा 9.81 गोल्ड मेडल, कैसा था वो फीलिंग? मैं इनसे भी पूछूंगा बिकॉज शी वाज क्राइंग। आप लोगों का वो जो विजुअल है वो वायरल हो गया इंडिया में। बहुत अच्छा लग रहा था सर, गोल्ड मेडल आके। वैसे तो खुशी हो रही थी कि पहला गोल्ड आया है हमारा पैरा एथलेटिक का, खुशी हो रही थी। Satya ji, she has struggled a lot. You mentioned that the other day, right? It has not been easy from there to here. Now her life will change. She's a star. Overnight, she's a star. All of us, we've been talking about her. Feels great, isn't it? Yeah, definitely. She's all the para athletes winning a medal, and para athletes they have a life struggle. Everybody, even Sharmila, is struggled a lot from more than 6 years. Even she is a comfortable only just for you can say last 4 years. To last Commonwealth, she's participated. She came on the 4th. Correct. Then I started giving some guidance, some advice how we should be managed. Now she is a very comfortable, and she is doing very good training in the Sports Authority of India, Bangalore, and also she have after 2 girl child she's Yes. when the 2 girl childs are there in the home, she's practicing is not so easy. Even a lot of commitment will be there in the home. Once he's become a child, they have a lot of commitment. In spite of that, she did a practice, she did a hard work. Even their daughters are helping for to mother to get a medal. I met on the, when she came on the Delhi, I met. Their children are now happy. Yesterday they celebrated. Ravi ji, when you see such achievement, Sharmila ji, Shilpa ji, you feel humbled. Absolutely. You know, it gave me such immense pleasure because I was a part of the spectators watching them compete yesterday evening. It gave me such a great pleasure, sense of pleasure. You know, and when I met them this morning in the in the dining room, and they were so humble. You know, like, you know, nobody in the wildest of dreams could have thought she has won a gold. So we all were joking with her. You know that do you know now how to sign autographs? So then she said, "Nahi, wo kya hota hai?" So then a friend of mine said, "Wait, I will teach you how to sign your autograph, because now you will have to sign a lot of autographs now." So you know, so such a fantastic journey, and I had the privilege of being appointed the deputy CDM and being a part of their stay here. You know, so it gives me also immense journey, happiness. I mean, and thanks, and our president PT Usha ji also is like so happy. She's like so thrilled at her, like, you know, like crossing the hurdle and fulfilling this milestone. You know, a great journey, and I wish them both all the best, and keep on rising and shining. You know, Jai Hind. You know, Shilpa ji, Satya ji, आप translate कर दो वो जो when that moment happened, when she got to know that medal है, थोड़ा सा unexpected ही था, but medal है, और वो जो visual इन दोनों का एक साथ मिलने का, वो तो अलग ही है. थोड़ा सा describe करने का हो. आप translate कर दो. ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೆ ಹೋಪ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಬ್ರಾಂಚ್ ಮೆಡಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಸೊ ಕೊನೆವರೆಗೂ ಸಹ ನಾನು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ 3rd ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿದ್ರು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೋಪ್ ಇತ್ತು, ಒಂದು ಗಾಡ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದಿತ್ತು. ಸೊ ಆ ನನ್ನ ಟ್ರಸ್ಟು, ನನ್ನ ಎಫರ್ಟು ನಾನು ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಆ ದೇವರು ಎಂದೂ ಕೈ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟು, ನನಗೆ ಆ ಖುಷಿನೇ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಇವಾಗಲೂ ನೆನ್ಕೊಂಡ್ರು ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ತುಂಬ ಹ್ಯಾಪಿ ನಾವು. ट्रांसलेट कीजिए. शिल्पा को कब मेडल मिला तब इसको इसको होप था, मैं अच्छा ट्रेनिंग किया, मेरा
ब्रॉन्ज मेडल आएगा, बट ब्रॉन्ज मेडल नहीं आया तब बहुत दुख लगा। बट आफ्टर दैट उसको वो मेडल नहीं आया बोल के सिर्फ उसका हाफ एन आवर ही रहा। आफ्टर हाफ एन आवर दे अनाउंस शी इज़ अ ब्रॉन्ज मेडलिस्ट। इसको बहुत खुश हो गया। ये बोलती है मेरा साथ मेरा ट्रेनिंग हार्ड वर्क किया, ट्रेनिंग का साथ है मेरा साथ सभी लोग का ब्लेसिंग था। गॉड आल्सो ब्लेस्ड मी। वो मेडल मेरे को मिल गया। मेरा ये मेडल जीतने के लिए मेरा जीवन में मैं बहुत कठिन श्रम किया है। Superb. Superb. We are also joined by her coach. Ma'am, first reaction. I mean, unbelievable. You have a gold medalist, you have a bronze medalist in the same event. Unbelievable. Your thoughts? अर्लियर पहले ही हमने प्लान किया था, मतलब इसका ब्रॉन्ज मेडल पक्का आएगा, हमारा एक्सपेक्टेशन था। बट सडनली जो नाइजीरिया वाले पार्टिसिपेट नहीं कर रहे करके हमने सोचा था, बट बाद में शी वाज अनएक्सपेक्टेडली पार्टिसिपेट किया तो नैरोली इसका मेडल मिस हो गया। तब हमें बहुत फील हुआ, बहुत बुरा लगा। फिर बाद में जब इसका मेडल आया वी वर वेरी हैप्पी एंड बहुत प्राउड फील किया हमने इसके बारे में। इसने बहुत मेहनत किया था, इसके लिए मेडल बहुत ज़रूरी था। इसका जो ज़िंदगी का सफ़र है वो बहुत मुश्किल है और इसके लिए मेडल बहुत ज़रूरी है और वी आर हैप्पी फॉर दैट। थैंक यू। प्रीति, पहले से आप जब बाउट स्टार्ट किया आप काफ़ी अटैकिंग खेल रहे थे, तो ऐसा सोच के आए थे, क्या गेम प्लान लेके आए? मेरा गेम प्लान यही था कि मुझे उसको चांस नहीं देना है स्कोर का। मैं जितना अपने आप को स्पीड कर सकती हूँ और जितना वेरिएशन करूँगी हेड बॉडी पंचेस का, और मैंने वही ट्राई किया, एग्जीक्यूट किया और रिजल्ट अच्छा रहा और मेडल कंफर्म किया। रिएक्शन दे दो, मेडल कंफर्म हो गया। लाइक बहुत अच्छा लग रहा है। मेडल का कितना महत्व है तो आपने इतना सारा जीता, तो कितना इम्पोर्टेंट मेडल? लाइक काफ़ी इम्पोर्टेंट गेम्स हैं ऑब्वियसली, और यहाँ पे फर्स्ट टाइम है मेरा कॉमनवेल्थ गेम्स और मैंने मेडल सिक्योर कर लिया है, तो ये बहुत प्राउड फीलिंग है। और अभी मैं अपने आप को नेक्स्ट बाउट के लिए प्रिपेयर करूँगी, वही अभी टारगेट। आप जब इस मैच में आ रहे थे तो मेंटली क्या चल रहा था, क्योंकि प्रेशर तो होता है ये ऑब्वियसली डू और डाई मैच सॉर्ट ऑफ है। ये प्रेशर रहता है थोड़ा, बट लाइक मैंने इतना डू एंड डाई का माइंड में नहीं था मेरा। मेरे को ये था कि मुझे अपना गेम प्लान जो मैंने किया है बस मुझे वही एग्जीक्यूट करना है, और अगर मैं अपना प्लान में 100% दूंगी तो ऑब्वियसली मैं अच्छा परफॉर्म करूंगी, तो मैं वही माइंड में था। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपकी पहली कॉमनवेल्थ गेम्स एंड मेडल कप में तो क्या कहना चाहिए? ये फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम है, और जैसे कि नेशनल से पहले हम आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग करते हैं, बिलवाल कोच के अंडर है जो कि हेड कोच है वहाँ के, और उसके बाद फिर हम कैंप में आते हैं। वहाँ के हेड कोच गुटप्पा साहब हैं और सारे कोचेस स्पोर्टिंग स्टाफ सभी मिलके एक ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाते हैं गेम से पहले। फिर हमने यहाँ ट्रेनिंग टूर किया बेलफास्ट में, वहाँ भी बहुत अच्छा इम्प्रूव हुआ, इंटरनेशनल पार्टनर थे। और फिर यहाँ बाउट जो थी मैं जीत गया हूँ, और अभी सेमीफाइनल शायद इस वर्ल्ड चैम्पियनशिप मेडलिस्ट के साथ आएगी जो अभी खेल रहा है, और मैं सेमीफाइनल में जीत के और फाइनल में भी जीत के अपना गोल्ड पक्का करूँगा। पूरी मेहनत है और बस आप दुआ करते रहिए। जय हिंद। जब 2 बार वार्निंग आई तो स्ट्रेटेजी क्या है? 2 वार्निंग आई तो मैं डिस्टर्ब तो हो गया था। एक वार्निंग की कोई दिक्कत नहीं होती है, अगर आपको एक वार्निंग मिल गई है और आप बाउट जीत गए हो तो एक वार्निंग अट जाती है, कोई मायने रखती। और 2 वार्निंग आ गई इसका मतलब 2 राउंड अगर जीते हुए हो तो 0 स्कोर हो जाएगा, बराबर हो जाओगे। फिर आपकी बाउट लास्ट राउंड पे जाएगी। मैं दोनों राउंड 4-1 से जीत गया था, पर 3 रेफरी बराबर हो गए थे, 2 में ऊपर चला गया था। तो लास्ट राउंड के ऊपर बात थी, लास्ट राउंड में फिर मैं उसकी काउंटिंग करा दी, उसके कारण फिर बाउट आ गई थी। तो टैटू के बारे में? टैटू तो ये बचपन में बनवाया था मैंने, मेले में देवी माता है वहाँ बनवाया था बास गाँव में, और अभी इसको मॉडिफाई कराऊंगा बजरंगबली का। मैं रिंग में जाने से पहले मैं देवराज कोच साहब का और बजरंगबली का नाम लेके जाता हूँ, और आज गुरु पूर्णिमा था, मेडल में कोच साहब देवराज को डेडिकेट करता हूँ। जय सभी को धन्यवाद कहना चाहूँगा इतना स्पोर्ट बनाने के लिए, और ऐसे ही बनाए रखे, आगे गोल्ड लेके जाऊँगा। कंपटीशन के बारे में बोलिए। कॉन्फिडेंट तो थे कि देश के लिए कुछ करना है और अपने घर वालों के लिए कुछ करना है, ना वो करना है, तो
कॉन्फिडेंस पूरा था। स्ट्रैटेजी क्या थी, क्योंकि ये काफ़ी खतरे का खेल था। स्ट्रेटजी तो कोच साहब के साथ बनाई थी मिलके कि आगे जाके डिफेंस करके खेलना है, पंच नहीं खाने, और वो स्ट्रेटजी काम आई। आपकी जूते के बारे में बताइए, दो अलग अलग क्या 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 खास बात है? ये मेरे कोच साहब ने बोला था, प्रदीप सावंत ने, उनकी वो थी तो पहन लिया ऐसे ही, कुछ डिफरेंट के लिए। सुपरस्टिशन है, दो अलग अलग जूते पहने? वो तो कुछ नहीं है, बस ऐसे ही बोल दिया कोच साहब ने तो पहन लिया। थैंक यू सो मच। कंफर्म हो गया सेकंड वन ऑन द ट्रॉट, बताइए। सर फाइट मतलब ठीक थी, इंग्लैंड की बॉक्सर के साथ थी और मैंने आज क्वार्टर फाइनल जीता है, इंडिया के लिए मेडल पक्का किया है और ये जर्नी यहीं पे भी ख़त्म नहीं होती है, अभी हमारी और बाउट्स हैं तो अभी अगली फाइट पे पूरा फोकस रहेगा। अभी क्लोज था पहले 2 राउंड, थर्ड राउंड आपने पूरा ले लिया था, बट पहले 2 राउंड क्लोज गया। हाँ, थोड़ा 2 राउंड क्लोज गया, वो भी लॉन्ग रेंज की थी तो थोड़ा सा लॉन्ग रेंज के साथ थोड़ा सा अनकंफर्टेबल रहता है, लेकिन फिर ठीक है कि थर्ड राउंड तक आते आते थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छा हो गया। बट सेमीफाइनल फाइनल पहला एक बाउट भी आप जीत चुके हो, अभी आप मोमेंटम भी आ जाना चाहिए। नहीं, अभी आ जाएगा अगली फाइट में और अच्छा बॉडी खुल गई है अभी, तो नेक्स्ट फाइट इससे भी ज़्यादा अच्छी होगी। सेकंड कॉमनवेल्थ और सेकंड मेडल, जैस्मिन कैसा लग रहा है? काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि हम यहाँ पे हैं तो यहाँ पे इंडिया के लिए जितना अच्छा हमसे हो सकता है वो करने के लिए आए हैं। पिछली बार ब्रोंज रह गया था, इस बार ये कोशिश से आए कि इस बार हम मेडल का कलर चेंज करके जाएंगे। भारतीय सेना ने सबसे पहले आपको सिलेक्ट किया था, उसका क्या फायदा मिला आपको? मैं 2022 में भारतीय सेना में मतलब ज्वाइन हुई थी और उन्होंने ये हम महिलाओं के लिए बॉक्सिंग में बहुत ही अच्छा कदम उठाया, इससे हमारी गेम इंप्रूव हो रही है बहुत ज़्यादा। उसके बाद से मेरी अचीवमेंट और बढ़ी है। हम आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग करते हैं और बिल्कुल जो मनोज सर हैं हमारे, तो उन्होंने ही मतलब हमें बोला कि आप आओ आर्मी में, हम लड़कियों की शुरुआत करना चाहते हैं, तो वो स्टेप मेरे लिए काफ़ी अच्छा रहा। और उसी के बाद अभी हम यहाँ पे आर्मी के बहुत सारी लड़कियाँ हैं और GSC भी स्टार्ट हो रखी है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। सेना की बात की जाए तो सबसे सीनियर हैं आप बॉक्सिंग टीम में, तो उसका और बच्चों को भी फायदा हुआ होगा। मतलब मेरी तरफ से यही कोशिश रहती है कि मैं अपने तरफ से अपने परफॉर्मेंस से अगर छोटे बच्चियों को अगर मैं इंस्पायर कर पा रही हूँ, कुछ उनकी मदद कर पा रही हूँ, तो मेरे लिए काफ़ी अच्छी बात होगी वो। थैंक यू। तीसरे राउंड के बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि उसमें आप लग रहा था कि आप आगे जाके मारने के मूड में, क्या डिसीजन था, सोचने क्या? नहीं, वैसे मेरा नॉर्मली गेम आगे जाने का नहीं है, लेकिन वो सिचुएशन ऐसे क्रिएट होगी तो बॉक्सिंग में हर तरह की सिचुएशन आते हैं, तो फिर इसलिए थोड़ा सा हाँ, कोचिज़ ने पूरा नीचे से प्रिपेयर करके भेजा थर्ड राउंड के लिए कि लास्ट राउंड है और इसमें आपको पूरा अच्छी स्कोरिंग लेनी है, तो कोचिज़ ने जो मतलब मोटिवेट किया और उन्होंने जो मेरे को गाइडेंस दी तो मैं वो कर पाई थर्ड राउंड में। और इनके बारे में आप बताइए, कभी पार किया है इसके साथ? नहीं, आज पहली बार ही फाइट थी मेरी उनके साथ। थैंक यू सर। बट ये बाउट में आने से पहले क्या स्ट्रेटजी थी? ऐसे तो यही किया था कि आज बहुत इम्पोर्टेंट था मेरे लिए ये बाउट जीतना, तो मैंने बस रूम पे यही सोचते रहा कि मैं आज बाउट निकालना है और इस बार इंडिया के लिए मैं गोल लेके जाऊंगा। तो वार्म अप में, फाइट में, पेयर में हम कोच सभी ने प्लान किया कि क्योंकि वो बंदा पावर था, स्पीड था, सब कुछ उसके अंदर था, तो हमने उसके हिसाब से प्लान करके आज बाउट में जीता, तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। आगे इस स्ट्रेटजी यही कि मैं बस आगे सेमीफाइनल है उसको अच्छा करूँगा और आगे भी आने वाले में भी बहुत अच्छा बॉक्सर तब मिलेगी मेरे को, तो इसके लिए हम ड्रीम तो मेरा इस कंपटीशन में तो गोल ही है और आने वाला LA में मैं इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लेके आऊँगा। थैंक यू।